Hello everyone. Our topic for today is socio-cultural influences on the aims and organization of education in context of Sanskritization. So basically we are talking about Sanskritization. By the end of this lecture we will able to understand what are socio-cultural factors, what is Sanskritization, relation with education, characteristics of Sanskritization, education before Sanskritization and effect of Sanskritization on education, what are the critiques of Sanskritization, and basically the conclusion we got through this video. Let's begin with a basic introduction, like what is education. So education is the process of awareness towards the life and surrounding. और जो education is a process that cannot go in isolation. The learning and education of any individual is influenced by several factors. जो learning होती है और education है ये अकेले नहीं होते, ये एक ऐसा process नहीं है जो अकेला चले, इसके लिए जो है वो बहुत सारे factors होते हैं जो इसको affect करते हैं. Now what are socio-cultural factors, because these all are related to Sanskritization. So social factors are like family, reference group, role and status. These are social factors. And cultural factors involve language, communication, courtesies, rituals, role, custom, relationship, practices, expected behaviors, values, thoughts, manner of interacting. So these all are include cultural factors. So what are social cultural factors? These are the sum of social factor with cultural factors like family, peers, school environment and community. So now we will come with our concept, our topic Sanskritization, which is given by M.N. Srivasan. M.N. Srivastava, he studied Kugs in Karnataka and found that the lower caste people adopted the customs and practices of Brahmins to raise their position and also gave up their own practices, which were considered as impure by the higher caste. For example, drinking liquor, animal sacrifice, eating meal, etc. Then he initially termed this as Brahmanization. Yes, the old name of Sanskritization is Brahmanization, and which was written originally in his book Religion and Society Among the Kugs, which was published in 1971 by M.N. Srivasan. But later he replaced the term with Sanskritization. Now coming to the definition. So Sanskritization is a process by which a lower caste or tribe or any other group changes its custom, ritual, ideology, way of life in the direction of higher or more often twice born caste. Here the term comes twice born caste, which means higher caste. So Sanskritization के प्रोसेस में जो है लोअर कास्ट पीपल हो और जो ट्राइब पीपल होते हैं वो अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, रिचुअल, आइडियोलॉजी को चेंज करते हैं, उस तरह डालते हैं जिस तरह हायर सोसाइटी के, हायर जो कास्ट के लोग हैं वो लोग रहते हैं. आप एक ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हो वेयर ब्राह्मण्स जो है वो सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास और दलित्स जो है वो सबसे नीचे आते हैं. तो ये लोअर कास्ट पीपल जो है वो सबसे ऊपर जो ब्राह्मण्स हैं उनको जो है वो फॉलो करते हैं, उनके रिचुअल्स, कस्टम, आइडियोलॉजी को अपनाते हैं. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी विच इज़ अपवर्ड इन नेचर विद इन एंड आउटसाइड फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट सिस्टम. So two words to think of: mobility and caste. So this process of Sanskritization is based on caste and upward mobility. That means lower caste person wants to become a part of the upper caste. They adopt upper caste practices and aspire to acquire the higher status in society. So let's come to the characteristics of Sanskritization. इसके अंदर क्या होता है कि इमिटेशन शुरू होता है. हम फॉलो करते हैं, जो लोअर क्लास पीपल है वो इमिटेट करते हैं अपर क्लास पीपल के वे ऑफ लिविंग को, मान लीजिए कस्टम्स को, वो बिल्कुल उन चीज़ों को कॉपी करते हैं एक तरीके से. और इसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों चीज़ें इंटीग्रेट होती है, जुड़ती है. ये स्टेटस जो लोअर क्लास वाले पीपल है वो चाहते हैं हमारा स्टेटस जो है ये बने. प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज टुवर्ड्स ट्वाइस बोर्न कास्ट, यानी कि हायर कास्ट जो है वो उनकी तरफ जो है वो प्रोसेस चलता है. सोशल मोबिलिटी इसके अंदर होती है जिसको हमने डिस्कस किया, ये अपवर्ड इन नेचर होती है. लोग जो है वो अपनी सोसाइटी में जो स्टेटस है उसको बढ़ाना चाहते हैं,
जैसे हायर कास्ट वाले लोगों का स्टेटस होता है, ऐसे ही अपर कास्ट वाले लोग जो है वो इसको बढ़ाना चाहते हैं। ट्राइबल्स भी इसको फॉलो करते हैं और लो कास्ट पीपल भी इसको फॉलो करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप प्रोसेस विच डज नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं होता, एक लोअर कास्ट के पीपल का ग्रुप होता है जो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्टेटस सोसाइटी के अंदर बढ़े। इट नीड्स अ नंबर ऑफ जनरेशन बिफोर इट इज़ सक्सेसफुली कंप्लीट। इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारी जनरेशन्स लगी, बहुत टाइम लगा। संस्कृताइजेशन इज नोन एज सिनोनिम ऑफ ब्राह्मणाइजेशन बट इज रिलेटेड टू डोमिनेंट कास्ट। पहले जो है हम जो एम.एन. श्रीवासन थे वो मानते थे कि ये ब्राह्मणाइजेशन है, बट बाद में देखा गया सिर्फ ब्राह्मणाइजेशन ही नहीं, जो भी डोमिनेंट कास्ट होगी, लाइक इतनी सारी कास्ट है, कुछ अपर है, कुछ मिडिल कास्ट वाले लोग, कुछ बिल्कुल लोअर कास्ट वाले लोग, तो वो फॉलो कर सकते हैं मिडिल को भी, दूसरी कास्ट को भी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दलित जो शूद्रास को भी फॉलो कर सकते हैं, वैश्यास को भी, क्षत्रियास को भी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वे ब्राह्मण्स को ही फॉलो करें, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिर्फ डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड है, नॉट फॉर ब्राह्मणाइजेशन। द सोर्स ऑफ संस्कृताइजेशन मे नॉट बी एनी कास्ट एट ऑल, इट कैन इवन बी इम्पर्सनल। और संस्कृताइजेशन नॉट ओनली मीन अडोप्शन ऑफ न्यू कस्टम एंड हैबिट। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप न्यू कस्टम और हैबिट जो है वो अपर कास्ट की उसको अडोप्ट कर रहे हो, उसको इमिटेट कर रहे हो। इसके अंदर जो है वो एक्सपोजर है वैल्यूज ऑफ कर्मा, धर्म, पाप, पुण्य, माया, मोक्ष, हर चीज़ का इसके अंदर एक जो है वो एक्सपोजर होता है। दीज आइडियाज रीच द कॉमन पीपल थ्रू स्टोरीज एंड टेल्स। जो थियोरेटिकल टेल्स जो बनाई गई है उसके थ्रू जो है वो ये चीज़ें कॉमन पीपल तक जाती है। तो अब बात करें, अब तो इस संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर क्या क्या बिफोर संस्कृताइजेशन क्या चीज़ें सोसाइटी के अंदर चलती थी। तो जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी एजुकेशन सिस्टम पर, जो ब्राह्मण के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग थे जिनके कास्ट ब्राह्मण थी, बेसिकली अपर कास्ट पीपल, उन्हीं की सुप्रीमेसी उस टाइम चला करती थी। हर जगह आप देखोगे तो एक ब्राह्मण वर्ग के लोग ही जो है वो पार में होते थे, ऊपर होते थे। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था वो हर जगह था। इवन इन क्लासरूम्स में भी जो कास्ट लोअर कास्ट वाले बच्चे होते थे, लोअर कास्ट वाले बच्चे, उन्हें पीछे बैठाया जाता था और अपर कास्ट वाले बच्चे जो है वो आगे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। और इससे क्या होता था, बच्चों का ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो गया। बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते थे, वो स्कूल में जाते थे और जब वो डिस्क्रिमिनेशन देखते थे तो फिर वो वापस आ जाते थे। इस तरह उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जो इनरोलमेंट भी था, बच्चों का स्कूल में आना, उनका एडमिशन सब कम हो गया था और इसकी वजह से जो है वो हायर एजुकेशन को भी गेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में स्कूल को छोड़ दिया करते थे। इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस बढ़ रही थी, पॉलिटिकल अनअवेयर थे लोग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। लाइक अगर ये मान लिया जाता था उस टाइम पर कि जो वुमेन है वो बेसिकली हाउस होल्ड वर्क करेगी और जो मैन है वो बाहर जाके काम करेगा। आपने देखा भी होगा, स्टोरीज में भी यही दिखाया जाता है कि जो मैन है वो तो बाहर गया है किसी भारी काम को करने, लाइक पत्थर तोड़ने का काम, कोई भारी काम करने, और जो वुमेन है वो घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा, ये सब करने में रहती थी। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे बहुत चलता था। तो संस्कृताइजेशन के इफेक्ट क्या हुए एजुकेशन पर। नाउ कम टू दिस टॉपिक। तो जो वेदास में चीज़ें लिखी गई उनको लोग फॉलो करने लगे। आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, ये सब जो है आने लगा। और जो गुरुकुल थे वो विद्याश्रम में कन्वर्ट होने लगे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आने लगा, लिटरेचर, फिलोसफी पढ़ाई जाने लगी। कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको कहीं ना कहीं इलिमिनेट किया जाने लगा। फीलिंग ऑफ लिबर्टी आई लोगों में। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होने लगी जब संस्कृताइजेशन आया। और जो कल्चरल वैल्यूज़ उनका ट्रांसफ़र हुआ, वुमेन की रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें थोड़ी बढ़ने लगी। लोगों का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुआ और इंक्रीज होने लगा एनरोलमेंट भी। बच्चे जो है वो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे भी स्कूल के अंदर आने लगे। हायर एजुकेशन में अचीवमेंट बढ़ने लगा उनका। बात करें यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स क्या रहे संस्कृताइजेशन के। सो देयर वाज सम क्रिटिसिज्म लाइक दिस काइंड ऑफ सोशल चेंज इन वो लोअर कास्ट गिव अप देयर सोल्ड रिचुअल। जो लोअर कास्ट पीपल थे वो अपने रिचुअल, अपने कस्टम, अपने फोक वेज वैल्यू, उन सबको छोड़कर एक नए कल्चर को अडोप्ट करना चाह रहे थे। सोसाइटी में नया स्टेटस बनाना चाह रहे थे। अपनी वैल्यूज़ को भूलकर वो जो है वो अपनी आइडेंटिटी को भूलकर हायर कास्ट वाले लोगों को बिल्कुल कॉपी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि एक कल्चर का डिप्लीशन हो रहा था एक तरीके से। और जो सोशल मोबिलिटी है लोअर कास्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सभी चाहते थे कि मेरा सोसाइटी के अंदर जो है वो स्टेटस इंक्रीज हो, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस तो कुछ नहीं हुआ बट पोजिशनल चेंजेस होने लगे इंडिविजुअल के।
और इस कॉन्सेप्ट में जो है वो अपर कास्ट के लाइफ स्टाइल को सुपीरियर माना गया, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी को इक्वल मानता है और हमें अपने रिचुअल्स, अपनी वैल्यूज़ को भूलकर किसी और की वैल्यू को अडोप्ट नहीं करना चाहिए। और इट टेक्स डिकेड एंड डिकेड फॉर अ कास्ट टू अपलिफ्ट इट्स स्टेटस इज इंडिकेटिव ऑफ द स्लोनेस ऑफ प्रोसेस एंड स्लोनेस इज एन इंडिकेशन ऑफ अपोजिशन। यहाँ पर हम बोले तो बहुत टाइम लगता है, डिकेड लग जाती है किसी भी जो कास्ट है उसका सोसाइटी के अंदर अपलिफ्टमेंट हो, उसे एक मोबिलिटी में वो आगे जा पाए, अपवर्ड मोबिलिटी हो उसकी, तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अपोजिशन है, इसलिए स्लो होती है। और इक्विटी जो कि होनी चाहिए वो इससे काफ़ी दूर है। इक्विटी यानी कि अगर आप जो है वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, जिस इंसान को जिस चीज़ की नीड है उसको वो प्रोवाइड किया जाए। अगर अपर कास्ट में कोई नीडी है तो उसे वो चीज़ दी जाए, लोअर कास्ट में किसी के पास सब कुछ है तो उसको जो है वो चीज़ें ना दी जाए, सबको इस तरह इक्वल किया जाए, उसको हम इक्विटी बोल सकते हैं। तो एक इक्विटी से तो काफ़ी दूर था। सो देयर वाज सम क्रिटिसिज्म, नाउ वी जस्ट कंक्लूड दिस टॉपिक। सेंसिटाइजेशन एक बहुत ऐसा प्रोसेस है जो रिजल्ट इसके ऐसे आए कि वैल्यूज़ को अडोप्ट किया गया, हायर कास्ट के आइडियाल्स जो थे उनको अडोप्ट किया गया, तो एक सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होने लगे। बल्कि कोई सोशल प्रोसेस जो है वो अननोटिस नहीं हुआ और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे प्रोसेस हुए, सब कुछ नोट किया गया, देखा गया और इससे जो है वो इसके काफ़ी फिर क्रिटिसिज्म भी होने लगे बाय कंपेयर जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, जो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते थे, उन्होंने इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया और इसको जो है वो एक मोर रेडिकल टर्नओवर माना। इसके अंदर माना गया कि जो अपर कास्ट पीपल है वो ही सुपीरियर है, उनका स्टेटस ही अच्छा है सोसाइटी के अंदर, और लोअर कास्ट को जो है वो नीचा देखा गया। और बोलते हैं उनमें भी कुछ ही लोगों का वो चेंज हुआ, बाकी सब जो है वो नीचे के नीचे रहते चले गए और वो कभी ग्रो नहीं कर पाए। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे और यहाँ पर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।